Hello students, a very good morning to all of you. Today we will begin the PHP, that is our server side scripting language. Okay, and it stands for the PHP Hypertext Preprocessor. So this PHP is used for both the static as well as dynamic website development and also some web applications के लिए भी ये आपका PHP यूज होता है. So these PHP scripts can only be interpreted with your server that has the PHP installed. And this PHP file contains the PHP tags and the extension is your .php. So the older version में क्या था कि older PHP file extensions include your .html, .php3, .php4, the version that .php5, PHPs. Okay, so now it is .php and the latest one is your PHP7. So ये जो आपका PHP है, if you are a beginner, server side scripting करना है, तो if you are beginner, then the best thing is you have to learn this PHP. Okay, so it has also many tags which is used in web development, and this PHP जो बोल रहे हो उसको अगर आपका सिस्टम इंस्टॉल करना है देन यू हैव टू डाउनलोड द जैम्प सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो PHP के लिए. प्लस आप अनदर वे में आप php.com ये सारे में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके, so these PHP scripts are executed on your server and this is very powerful and biggest blogging systems on the web, as well as ये आपका लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट में भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स डेवलप करने के लिए भी यूज होता है. सो अगर हम लोग बोलें तो इट इज ऑल्सो इजी इनफ टू बी अ बिगिनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज. सो दिस इज the popular PHP sites, that is the social sites, or whether it is Facebook or Dig or some blogs, CMS, that's WordPress, Joomla, e-commerce purpose के लिए यूज होता है, PrestaShop, OpenCart and many more, Magneto, others, Yahoo, Wikipedia. So आज जो आप वेब पेज सब देख रहे हो that are developed by using this PHP. Okay, and apart from this PHP, there are other languages also there which is helpful to develop your web pages. So you can write the program. आप PHP को HTML में इंक्लूड कर सकते हो एंड आप HTML को PHP में इंक्लूड करके लिख सकते हो. ओके, सो आपका जो PHP फाइल है दैट कंटेन्स योर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपका HTML सपोर्ट करेगा, आपका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करेगा, PHP कोड सपोर्ट करेगा. ओके, एंड एज यू नो द एक्सटेंशन में आप रखोगे दैट इज योर .php. देन कम टू योर PHP7 में ऐसे क्या फैसिलिटीज है. PHP7 इज मच फास्टर देन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल रिलीज दैट इज PHP 5.6. and it has improved some error handling mechanism भी है, and it also supports the stricter type declaration for the function argument, as well as it supports some new operators, that is your specific operator. This is a symbol. Okay, so how to start a PHP program? First thing that you have to install it. First thing you have to install it. Then after installing it, then अगर आपको शुरुआत करना है then you have to learn the syntax. So the basic PHP syntax is, you see that the tag this way, this is the question mark PHP. Okay, then PHP code you have to write middle of this. Okay, जैसे आप HTML tag यूज करते हो तो PHP का भी डिफरेंट टैग यूज होता है. ओके, सो इस टाइप का आप
अगर स्टार्ट किए हो तो आपको इस तरह से आपको एंड करना है. So some meta characters are used here like this, okay, and inside that you have to write the code. So this is the example for you where we are using PHP inside the HTML, okay. So doc type HTML, then HTML tag, starting of HTML tag, then body, and I'm writing inside the body that my first PHP page, okay. Then if you want to print it here, that then you use this echo hello, okay, then close it, okay. So this is the simple one कि आपको इस तरह से लिखना है, स्टार्ट करना है in this way, then echo. If you want to print it, then you have to write echo, then write the message inside the double quote, then ending of this PHP script, then closing of the body, then closing of the HTML. So if we are talking about the case sensitivity, then this is not case sensitive in nature. मतलब this is the example, यहाँ पे जो echo लिखा हुआ है या फिर ये स्मॉल लेटर में echo लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ओके. वो आपको हेलो वर्ल्ड ये सारा चीज प्रिंट कर देगा, ओके. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन इट इज केस सेंसिटिव इन नेचर, ओके, लाइक दिस. यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, दिस इज द डॉलर सिंबल. आप सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करोगे डॉलर सिंबल देके, देन कलर इक्वल टू योर ब्लू असाइन किया हो, ब्लू कलर, ओके. So if I want to print that echo my scooty is, then accessing that color, that is dollar, like this dot dollar color, then it will show you blue color. But when I am writing echo my scooty is, अगर मैं इसमें कैपिटल लेटर में कलर लिखूं तो कलर आपको वो शो नहीं करेगा. my scooty is तो शो करेगा, बट वो ये कलर आपको एक्सेस नहीं करेगा, बिकॉज मैं जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ वो क्या है, स्मॉल लेटर में है, ओके. सो ये कलर आपको शो नहीं करेगा, ओके. जैसे इसमें भी अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो वो भी आपको शो नहीं करेगा. सो आउटपुट सिर्फ आएगा माई स्कूटी इज ब्लू, और बाकी सब में सिर्फ माई स्कूटी इज आएगा, वो कलर एक्सेस नहीं करेगा, बिकॉज मैं ये जो ब्लू कलर असाइन की हूँ स्मॉल लेटर में, जो कलर है वेरिएबल डिक्लेयर की हूँ उसमें असाइन की हूँ, ओके. सो इसमें भी आप कमेंट लिख सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट नॉर्मली इस तरह से यूज़ करके, देन हैश सिंबल देके भी आप लिख सकते हो सिंगल लाइन कमेंट. देन मल्टी लाइन कमेंट में आप स्लैश स्टार मार्क asterisk symbol, then closing में भी asterisk symbol, then slash, okay. Then if you want to using a comments to leave any part of your code, then inside that I want to leave that +10, then just keep it inside this slash asterisk symbol, then asterisk symbol slash, इसके अंदर लिख देना. सो ये आपको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो आपको रिजल्ट भी दिखाएगा 2 + 5, ओके. 2 + 5 दैट इज 7 दिखाएगा. देन कम टू क्रिएटिंग एंड डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल. सो PHP में एक कॉन्सेप्ट है, जब आप एक वैल्यू आप एक वेरिएबल को असाइन करते हो तभी ही आपका वेरिएबल एक क्रिएट हो जाता है. सो देयर इज नो कमांड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन योर PHP, ओके. सो हियर द जनरल सिंटैक्स आप लिख सकते हो कि PHP का टैग स्टार्ट हुआ, देन आप टेक्स्ट TXT में आप असाइन कर रहे हो PHP, देन 10 is assigned to A, 10.5 is assigned to Y, then you close this bracket, okay. And if you want to print it, then you use the echo tag, echo use करना है, okay. So here the thing is that कि आपका जो PHP है वो by default
आपका जो PHP टैग है उसको आप इन बिटवीन कहीं पे भी प्रोग्राम में लिख सकते हो, ओके। एंड हम लोग जो PHP का जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, सो PHP हैज no command for your declaring a variable and it is created the moment when you first assign a value to it. Then come to your PHP हैज़ 3 डिफरेंट वेरिएबल स्कोप्स। जैसे नॉर्मल वेरिएबल में रहता है, सी में पढ़े हैं, जावा में पढ़े हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड योर स्टैटिक टाइप वेरिएबल। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर यू, दैट इज दिस ग्लोबल स्कोप फंक्शन माय टेस्ट, देन योर लोकल, यहाँ पे फंक्शन का नाम माय टेस्ट, देन दिस इज हम लोग फंक्शन से पहले लिखे हैं, तो दिस इज ग्लोबली एक्सेस। So globals को हम लोग दिए हैं 5 is assigned to x. Here inside that function I'm assigning 6 to x, that is local scope, and I want to print that variable x inside the function is, so वो आपको print करेगा 6. Then अगर मैं function लिखी हूँ, अगर another function my test1 I'm assigning 0 to a, then this is the static, and I want to print the value of a, then I'm doing the increment then a plus plus, so वो आपको दिखाएगा जितना बार मैं my test1 को कॉल करूँगी वो आपको इंक्रीमेंट कर करके दिखाएगा। देन अगर मैं my test मेथड को कॉल कर रही हूँ, my test मेथड इज हियर, सो वो आपको प्रिंट करेगा क्या, वेरिएबल x इनसाइड द फंक्शन, ओके। सो अगर my test को कॉल की, देन अगर मैं इको वेरिएबल x आउटसाइड द फंक्शन इज $x, अगर इसको एक्सेस करना चाहती हूँ, माई टेस्ट के अंदर जो है वो 6 प्रिंट करेगा। बट अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिख रही हूँ तो आपको ग्लोबल वेरिएबल मतलब इस 5 वैल्यू को वो एक्सेस करेगा, ओके। सो अगर माई टेस्ट 1 की, तो माई टेस्ट 1 में क्या है, 0 फर्स्ट है, सो 0, देन 1, माई टेस्ट 1 को फिर और एक बार की तो वो 2 दिखाएगा, ओके। देन उसके लिए प्रिंट करने के लिए भी मुझे इको यूज़ करना है, ओके, इको लिखना, सो दैट इट विल प्रिंट द वैल्यू, ओके। सो आउटपुट दिखाएगा वेरिएबल x इनसाइड द फंक्शन इज 6, वेरिएबल x आउटसाइड द फंक्शन इज 5। देन वो हम लोग 2 बार कॉल करेंगे तो वो 2 बार दिखाएगा, मतलब माई टेस्ट 1 फर्स्ट आपको 0 दिखाएगा, देन इंक्रीमेंट होगा द वैल्यू, देन वो आपको माई टेस्ट 1 और एक बार कॉल करोगे तो फिर और आपका प्रिंट करेगा 1, ओके।